السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے 34ویں نیشنل گیمز کے حوالے سے موسم کا احوال بتا رہے ہیں۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ ہیڈ لائنز شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی لا رہا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کمرشل پلاٹس کا شاندار نیلامیہ 29، 30 اور 31 مئی کو صبح 10 بجے بمقام جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد۔ نیلامی میں مختلف مراکز اور ڈیو ایریا کے کمرشل پلاٹس، انڈسٹریل، مارکیز، ایگرو فارمز، پیٹرول پمپس، کلاس 3 اور دیگر کیٹیگریز کے مختلف سائز کے پلاٹس پیش کیے جائیں گے۔ مقامی اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے مکمل قانونی تحفظ کے ساتھ خصوصی مراعات، جن میں شامل ہیں یکمشت ادائیگی پر 10% رعایت، ڈالرز میں ادائیگی پر خصوصی 5% مزید رعایت پیش کی جائے گی۔ صرف 25% ادائیگی پر بلڈنگ پلان کی منظوری۔ مختلف پلاٹ سائز پر منصوبے کی تکمیل کا دورانیہ 3 سے 5 سال تک۔ سرمایہ کاروں کی قدم قدم پر رہنمائی اور معاونت کے لیے خصوصی ٹیم مامور۔ بروشر CDA کی 1 ونڈو ڈائریکٹریٹ اور مختلف بینکوں کی نامزد کردہ برانچوں سے حاصل کریں۔ نیلامی کے قواعد و ضوابط کی تفصیل بروشر میں دستیاب ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد۔ یوم تکریم شہداء، مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے سپوتوں کو پوری قوم کا خراج عقیدت۔ ملک بھر میں تقریبات، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی GHQ راولپنڈی میں یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان ایئر فورس اور نیول ہیڈ کوارٹرز، فارمیشن ہیڈ کوارٹر اور شہداء کی یادگاروں پر بھی تقریبات کا انعقاد۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ایسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور وقار مجروح کرنے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی۔ فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت ہیں۔ شہداء کی قربانیوں کو کوئی رائیگاں نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پولیس لائنز اسلام آباد میں افسروں، جوانوں اور شہداء کے لواحقین سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پشاور کا دورہ، شرپسندوں کی جانب سے ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کرنے اور نقصانات سے متعلق بریفنگ۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں۔ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو قوم معاف نہیں کرے گی۔ عہد کرتے ہیں کہ ایسے واقعات دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں پشاور میں اجلاس، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ۔ منصوبہ بندی کے تحت قومی املاک اور عسکری تنصیبات پر حملے کیے گئے، شرپسندوں کو شواہد کے ساتھ کٹہرے میں لائیں گے۔ پوری قوم نے عمران نیازی کا مکروہ چہرہ اور دوغلا پن دیکھ لیا۔ جن پر اپنی حکومت ہٹانے کا الزام لگایا، انہی سے آج مدد مانگ رہا ہے۔ وزیر اعظم کا عمائدین سے خطاب۔ ہمارے لیے خاصا صدمہ تھا۔ ہمیں اپنے شہداء کی تکریم میں ان کے تقدس کو بحال رکھتے ہوئے ان کے لیے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی، یہ شفق رنگ لہو رنگ لائے گا۔
वतन अजीज के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को पूरी कौम का सलाम। बहादुर सपूतों के मज़ारों पर दुआया तकरीबात, लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती। शोहदा और लवाहिकीन की तकरीम और ताज़ीम का अज़्म। मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। बारूदी जहन वालों ने आज़ादी का तारीख साज ऐलान करने वाले रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जला दिया। मुनाफरत के सौदागरों ने कौमी वकार और यादगारों की बेहुरमती की। इन जालिमों को जराइम का हिसाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। जिन्ना हाउस लाहौर जलाओ घिराव और हंगामा आराई के 16 शरपसंदों के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई की इस्तदा मंजूर। हसन न्याजी, मुराद सईद, अली नवाज अवान, असद कैसर, शिबली फराज, फर्रुख हबीब, जुल्फी बुखारी और आतिफ खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज। यास्मीन राशिद और महमूद रशीद का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तगियों का मामला। चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज। पुलिस का परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर छापा। अदम मौजूदगी पर वापस चली गई। तकब्बुर और अना नाकामी का सबब होते हैं। मुश्किल वक्त में साथ देने वालों का शुक्रगुजार हूं। अवामी मसाइल के हल के लिए काविशें जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने वालों का खैर मकदम करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन। 220 किलोमीटर तवील थर बिटियारी ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह। 1980 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। जो काम 4 साल में ना हो सका वो 4 माह में कर दिखाया। 1 अरब रुपए की रिकॉर्ड बचत भी की गई। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर। सेनेट कायमा कमेटी खारजा उमूर का इजलास। दहशत गर्दी पूरे खित्ते और पाकिस्तान का मसला है। मेरी वालिदा बेनजीर भुट्टो दहशत गर्दी का निशाना बनी। SCO वज़ीर खारजा इजलास में भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात की बहाली अहम पेशरफ्त है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। भारतीय हुकूमत जो सूरत हाल दिखा रही है, हालात इससे यकसर मुख्तलिफ हैं। रुकन बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन। अमरीकी स्कॉलर नोम चॉम्स्की की भी भारतीय हुकूमत पर तनकीद। रूस और बेलारूस के दरमियान जौहरी हथियार नस्ब करने की दस्तावेज पर दस्तखत। रूसी फौज के यूक्रेन पर मिसाइल हमले। अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। बाखमूद का कंट्रोल रूसी फौज के हवाले करने के लिए अलहदगी पसंद ग्रुप वैगनर का इनखला शुरू। ईरान की 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खैबर की नुमाइश 1500 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। चौंतीसवीं नेशनल गेम्स इख्तितामी मराहिल में मेडल टेबल पर आर्मी 180 तमगों के साथ सर फहरिस्त। वापडा की 136 मेडल्स के साथ दूसरी और नेवी की 88 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। और ओमान के शहर सलाला में जूनियर हॉकी एशिया कप। पाकिस्तान की दूसरे मैच में थाईलैंड को 9 गोल से शिकस्त। कौमी टीम तीसरा मैच हफ्ते को भारत के खिलाफ खेलेगी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वतन के शुहदा पे नाज हमको, ये नाज हमको सदा रहेगा। वतन के शुहदा पे नाज हमको, ये नाज हमको सदा रहेगा। ये जान जाती है चाहे जाए, वतन हमारा बचा रहेगा। ये कह के सीनों पे जख्म खाए, जरा भी इस पर ना आंच आए। लहू से सींचा है सारा गुलशन, ये सारा गुलशन खिला रहेगा। अजियतों को, मुसीबतों को गले लगाकर पयाम दे दो, ये राहे हक है,
यहां पे हर सू वतन से अहदे वफा रहेगा। गिले मिटाकर, गले लगाकर, बुलंदियों पर कदम जमाकर फलक के ऊपर हमारे परचम का चांद तारा सजा रहेगा। जो सर बकफ हैं वतन की खातिर, है जान हथेली पे जिनकी हाजिर। जो सर बकफ हैं वतन की खातिर, है जान हथेली पे जिनकी हाजिर। खुदा की रहमत का उनके सर पर हमेशा साया बना रहेगा। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे शहदाए वतन अजीज़ की। शहदा की बेलौस कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज यौम तकरीम शहदा मनाया गया। दिन का आगाज़ नमाज फजर के बाद कुरान ख़वानी से हुआ। पाकिस्तान की सलामती और शहदाए पाक सरजमीन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पाक फ़िज़ाइया, बहरिया, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर और पुलिस की यादगार शहदा पर तकरीबात हुई। मुल्क भर के स्कूल्स और कॉलेजेस में भी खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया गया। मादरे वतन पर मताए जान लुटाने वाले गयूर बेटों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। तकरीब का अहवाल बताएंगे आसिम रिजवान। अपना हाल कौम के मुस्तकबिल पर कुर्बान करने वाले मोहसिनों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। पुरवकार तकरीब के आगाज में कौमी तराना बजाया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। या अल्लाह वतन अजीज को इस्तेहकाम नसीब फरमा और हर मैदान में कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमा, आमीन। शोहदाए पाकिस्तान को आर्मी चीफ ने खराज अकीदत पेश किया और सलामी दी। इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस, डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कमिश्नर रावलपिंडी, कमिश्नर इस्लामाबाद और रीजनल पुलिस अफसर रावलपिंडी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। यादगार शोहदा पर हाजिरी देने वालों में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड नदीम रजा भी शामिल थे। दिगर मुमताज शख्सियात में मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मौलाना अबू अल खबीर आजाद और इशरत फातिमा ने भी यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। तकरीब में शोहदा के अहले खाना और स्कूल के तुलबा और तालिबात ने भी यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। तकरीब में आला अस्करी हुक्काम, शोहदा के लवाहिकीन और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात समेत तुलबा और तालिबात ने शिरकत की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई के वाक़यात पर पूरी कौम शर्मसार है। कौमी तनसीबात पर हमले में मुलव्विस शरपसंदों, जत्थों और दहशतगर्दों और वतन दुश्मनों में कोई फ़र्क नहीं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी अमलाक पर हमले करने वाले शरपसंदों को कानून और इंसाफ के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलेगी ताकि कोई दोबारा ऐसी जसारत न कर सके। तफसील जानेंगे आका मसूद खालिद से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया। तारीखी पस मंजर की हामिल इस इमारत ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस और कौमी बयानिए को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। 9 मई के अलमनाक वाक़यात में शरपसंदों ने इस कौमी विरसे और कौमी हमीयत की हामिल इस इमारत को शदीद नुकसान पहुँचाया था। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को रूनुमा होने वाले दिल खराश वाक़यात ने पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के दिलों को शदीद ठेस पहुँचाई।
रेडियो पाकिस्तान पिशावर ने ही मुमलिकत खुदादाद की आज़ादी का ऐलान किया। तारीखी अहमियत की हामिल इस इमारत के साथ ऐसा सलूक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों और दहशत गर्दों में कोई फर्क नहीं। उन्होंने कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद है और अहद करती है कि ऐसे शरपसंद अनासिर को कानून और आइन के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऐसे वाक़यात हमारा अज़ली दुश्मन भी न सोच सका, अपनों ने दुश्मन बनकर, दहशत गर्द बनकर ये वाक़यात जो उन्होंने सर अंजाम दिए हैं, कानून और आइन के मुताबिक उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीखी और कौमी विरसे को जला देना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी मुल्क दुश्मन कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस सेंटर से आज़ादी की सदाएं 1947 में बुलंद हुई, उसको जला देना, राख का ढेर बना देना, चागी की जो यादगार थी उसको राख बना दिया, इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी को हो नहीं सकती। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने रेडियो पाकिस्तान पिशावर को पहुंचने वाले नुकसानात के बाद बहाली के कामों से मुतल्लिक वजीर आजम को आगाह किया। उन्होंने कहा कि मनसूबा बंदी के तहत रेडियो पाकिस्तान पिशावर की इमारत पर हमला किया गया और उन तारीखी आर्काइव्स को जला दिया गया जो अनमोल थे। कीमती असासे को इन्होंने आग लगाई है जिसकी कोई नेमुल बदल नहीं है। हम इस तरह के लोगों को, इन मुजरिमों को, इन मुसल्लह जत्थों को बिल्कुल किसी किस्म की रियायत नहीं देंगे। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ को रेडियो पाकिस्तान पहुंचने पर इमारत को तकनीकी और रिकॉर्ड समेत पहुंचने वाले दीगर नुकसानात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान ताहिर हसन ने नुकसानात और बहाली के इकदामात से मुतल्लिक आगाह किया। वजीर आजम को बताया गया कि 4 मंजिला इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह और आर्काइव की सूरत में मौजूद कौमी विरसे को जला दिया गया। इस मौके पर वजीर आजम ने रेडियो पाकिस्तान पिशावर पर होने वाले हमलों में शरपसंद जत्थों का जवाबमर्दी से मुकाबला करने और इस दौरान जख्मी होने वाले रेडियो मुलाजमीन से भी मुलाकात की और उनके अज़्म और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेडियो पाकिस्तान पिशावर की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कौमें अपनी तारीखी विरसे और शनाख्त की हिफाजत करती हैं, ऐसी इमारत को तबाह करना मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रेडियो पाकिस्तान पिशावर की मुरम्मत का काम फौरी शुरू करवाया जाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर और दहशत गर्दों में कोई फ़र्क नहीं। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक न पहुँचाया तो कौम मुआफ़ नहीं करेगी। पिशावर में नुमाइंदीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने देंगे। तफसील बताएंगे इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक रोज़ा दौरे के दौरान गवर्नर हाउस पिशावर में खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन के इजलास की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पिशावर समेत वफाक और सूबों में फौजी और सिविलियन तंसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में माजी में भी वाक़यात रुनुमा हुए हैं, लेकिन तामुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया है। ताहम 75 साल में ऐसा अलमनाक वाक़या पहली बार रुनुमा हुआ। 9 मई का जो वाक़या हुआ है बहुत अलमनाक वाक़या था। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये दहशत गर्दी हुई, जहाँ पर ये दुश्मनी हुई, ये बहुत ही एक तारीख दिन था पाकिस्तान की तारीख़ में। तो ये तमाम मामलात का इतना गहरा असर हुआ है पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी में कि इसने हर चीज़ को बदल के रख दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमले पर उकसाने वाले, गाली गलोच और हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बड़ी मुशावरत के बाद ये तय हुआ कि जो सिविलियन तंसीबात हैं वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कानून की अमलदारी होगी और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए शवाहिद के साथ उनको कानून के मुताबिक उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और जो फौजी तंसीबात हैं वहाँ पर ये तय पाया है कि आइन ने इस हवाले से जो इख्तियार दिया है फौज पाकिस्तान को, उसके तहत जिन्होंने फौजी तंसीबात पर हमले किए, उकसाया, मनसूबाबंदी की, उनको
उस कानून के मुताबिक गिरफ्त में लिया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि कौमी तंसीबात पर हमले मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पिशावर ने 14 अगस्त 1947 को आजादी की नवीद सुनाई। मुजाहिरीन ने इस तारीखी इमारत और विरसे को भी राख कर डाला। रेडियो पाकिस्तान पिशावर जो 13 और 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की नवीद सुनाई और पूरी दुनिया ने सुना, उसको राख कर डाला। उनके जो तारीखी जो विरसा है उसको तबाह कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेदर्दी के साथ और दुश्मनी के साथ, एक सोच के साथ और क्या तबाही हो सकती है। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत और अमले की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमलों में मुलव्वस अनासिर को शवाहिद की ठोस बुनियादों पर कटहरे में खड़ा किया जाएगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पिशावर में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में अमन व अमान के हवाले से इजलास गवर्नर हाउस पेशावर में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी की इन वाक़यात पर दिल रंजीदा है। 9 मई को शरपसंदों ने मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। केपी में जिन लोगों ने दहशतगर्दी की और दोस्त नुमा दुश्मनों ने पाकिस्तान दुश्मनी की फौजी तंसीबात और सिविलियन तंसीबात पर हमला करके वो काम किया जो दुश्मन 75 साल में ना कर सका। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमले की मंसूबाबंदी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। जो लोग इस मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस पाए गए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सब इस जुर्म में शामिल हैं और उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें ऐसे तमाम लोगों की निशानदही करनी होगी जो पाकिस्तान की बुनियादों को तबाह करना चाहते हैं, वरना कौम हमें माफ नहीं करेगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर बरसगीर की तकसीम का एक नामुकम्मल एजेंडा है। हर पाकिस्तानी का दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है। उन्होंने कहा कि भारत की मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा साबित करने की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब न हो सकेंगी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के भारत की तरफ से कश्मीर पर झूठे प्रोपेगेंडे और मकबूजा वादी में हालिया G20 इजलास बुलाकर दुनिया को गलत तासुर देने की मज़मूम कोशिशों को दुनिया भर में बेनकाब करने के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारिजा के आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज़ असम्बली में कश्मीरियों की उमंगों की तर्जुमानी से भरपूर खिताब की भी तारीफ़ की। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वकार को मजरूह करने वालों को ना कौम माफ़ करेगी और ना ऐसे वाक़े को दोबारा बर्दाश्त किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। तफसील इमरान मनसब खान से। योम तकरीमी शोहदा पाकिस्तान के हवाले से पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में अफसरों, जवानों और शोहदा के लवाहिकीन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पाक फौज तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। वो शोहदा जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हयात जावेदा अता फरमाई, उनकी कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत और सीसा पिलाई दीवार की मानंद हैं, जो मुल्क कौम के वकार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पुलिस लाइन आमद पर इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर खान नासिर ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने योम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर स्कूल के बच्चों से गैर रस्मी मुलाकात की, जिनमें शोहदा के बच्चे भी शामिल थे। आर्मी चीफ ने बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखते हुए कहा कि पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आपसे हमारा कायम होने वाला रिश्ता मिसाली और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि पाक फौज हमेशा आपके शाना बिछाना खड़ी रहेगी। आर्मी चीफ ने सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से भी मुलाकात की। 12 अप्रैल 2022 में अंगूर अड्डा वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही इमरान शहीद की बेटी के वीडियो बयान ने पूरी कौम को अशबार कर दिया था। आर्मी चीफ ने शहीद की बेटी को GHQ की तकरीब में खसूसी तौर पर मदऊ किया। जनरल आसिम मुनीर ने इंतहाई शफकत और प्यार से कौम की बेटी को यकीन दिलाया कि शोहदा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल, खासकर बच्चे, मुस्तकबिल के मेमार हैं। पाक फौज आने वाली नस्लों के लिए मुल्क में अमन और सलामती के क़याम की खातिर हमेशा अपनी कोशिशें जारी रखेगी। इमरान मनसूब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
पाक बहरिया, पाक फ़ज़ाइया और जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में यौम तकरीम शहदा के हवाले से खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगे आसिम रिजवान। नीलगू सरहदों की मुहाफिज चहार जहती कुव्वत पाक बहरिया में भी मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले अजीम सपूतों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा के मौका पर खसूसी तकरीब का इनेकाद नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुआ। पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी थे। अमीरुल बहर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने शोहदा को सलामी दी। पाक फिजाइया ने भी यौम तकरीम शोहदा को पुरतपाक अंदाज में मनाया। यौम तकरीम शोहदा पर पाक फिजाइया की मरकजी तकरीब एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। पाक बहरिया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान को सलामत ता क़यामत फरमा और हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और सलामी दी। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यौम तकरीम शोहदा पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की जानिब से डायरेक्टर जनरल ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। पाक बहरिया की जानिब से रेयर एडमिरल अब्दुल बासित और पाक फिजाइया की नुमाइंदगी करते हुए एयर कमोडोर वसीम ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात और रैलियों का एहतमाम किया गया, जिनमें अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर और कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ारात पर हाजिरी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, ये मुल्क शोहदा की कुर्बानियों की वजह से ही कायम दायम है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन दिन था। कौम के ये मुजरिम किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। यौम तकरीम शोहदा पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले शहीद मेजर सरमस रऊफ की कब्र पर सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर शहीद के वर्सा और इलाके के लोग भी शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनके आबाई इलाके हिन्नूर में तकरीब हुई। मुकर्रीन ने शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए वतन अजीज के दिफा में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। इस दौरान पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस गिलगित में भी यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर हुकाम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हम आज आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम कोसार ब्लॉक से डी चौक तक रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में शोहदा की तस्वीर उठा रखी थी। शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद किए। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम यौम तकरीम शोहदा के मौके पर अजीमुल शान रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने हाथों में पाकिस्तानी परचम और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे दर्ज थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अबरार अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि हम 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में भी यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। तालिबे इल्मों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्किदा तकरीब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी समेत बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से अफवाज पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। हनीफ अब्बासी ने कहा, 9 मई के वाकयात में जितने भी किरदार हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में मीरपुर खास में भी रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज और शोहदा जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद करते हुए फौज पाकिस्तान और शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
खबरनामे में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ रहिएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और इस पर कौम उनकी मखरूज रहेगी। यौम तकरीम शोहदा के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि आज हम मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले अपने आबा अजदाद और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बेमिसाल जुर्रत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यौम तकरीम मना रहे हैं। जितनी बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। और मैं लवाहिकीन को भी ये कहता हूँ कि देखो, कभी उनकी औलादें मौजूद होती हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ने जन्नत के लिए तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर लिया कि बाप जैसी शफ़क़त तो दे नहीं सकते, मगर फिर भी कोशिश करो तो तुम्हारे अपने रास्ते मुकम्मल होंगे। तो मैं इस मौके पर और आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली गौस बख्श मेहर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सरदार गौस बख्श मेहर ने वफाकी हुकूमत के सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए वज़ीर आज़म की खुसूसी दिलचस्पी पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की मज़म्मत करते हुए गौस बख्श मेहर ने वज़ीर आज़म की तरफ से ज़िम्मेदारान को करार वाक़ई सज़ा के अहकामात की भी तारीफ़ की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरा पेशावर में मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम की रिहाइशगाह गए और मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारान और सियासी कारकुनान से मुलाकात की। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में सरदार अयाज सादिक की रिहाइशगाह गए और उनके बड़े भाई सरदार महमूद सादिक की वफात पर उनसे इज़हार ताज़ियत और फातिहा खाने की। सरदार अयाज सादिक से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ सोगवारान के साथ हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरहूम के बुलंदी दरजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। मुलाकात में वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़ और मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के दौरे के दौरान सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। मुलाकात में जियो स्ट्रेटजिक माहौल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़िज़ाइया को जदीद बनाने और मकामी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए जारी मुख्तलिफ़ मनसूबों से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पाक फ़िज़ाइया को जदीद खुदूद पर उस्तवार करने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरकार लाएगी ताकि मुल्क के नाकाबिल तस्खीर फ़ज़ाई दिफा को यकीनी बनाया जा सके। कौम पाक फ़िज़ाइया के तमाम शुहदा की शुक्रगुजार है जिन्होंने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में 9 मई को होने वाली शरंगेज कार्रवाइयों के नतीजे में होने वाली तबाही को शेयर किया। उन्होंने कहा कि सोची समझी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और जहन साजी के तहत वतन फरोश आलाकारों ने इस जुर्म का इर्तिकाब किया। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने आज़ादी और पाकिस्तान के क़याम का तारीख साज ऐलान किया था जिसे जला दिया गया। 1932 में कायम होने वाला ये कदीम तरीन स्टेशन है। बग़ैर तार लहरों के मौजिद मार्कोनी ने सूबे के उस वक्त के वज़ीर आला अब्दुल क़य्यूम खान की दरख्वास्त पर रेडियो का तोहफ़ा दिया था और नस्ब करने लंदन से खुद यहाँ आए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बारूदी जहन और दिल में नफ़रत की आग रखने वाले गुमराहों ने कौमी वक़ार, यादगारों, एम्बुलेंसेस के साथ तारीख ही जला डाली। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर का नादिर व नायाब वर्सा खाकस्तर कर दिया गया। इन जालिमों को जराइम का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि घड़ी फरोश ने तारीखी तोहफ़ा अना की आग में जलाकर भस्म कर दिया।
पेशावर में 1935 से नशरियात का सफ़र जारी रखने वाला रेडियो स्टेशन बरे-सग़ीर में नशरियात की तारीख के हवाले से अहमियत का हामिल रहा है। हालिया हंगामों के दौरान इस तहजीबी वर्से को जलाया गया। अवाम में कौमी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मजीद बता रहे हैं अमजद अली खान। 1935 में सिविल सेक्रेटेरिएट पिशावर की इमारत में इब्तिदाई नशरियात शुरू करने वाला रेडियो स्टेशन 16 जुलाई 1942 को खैबर रोड पर अपनी पहली पुख्ता इमारत में मुंतकिल हुआ, जहां से क़याम पाकिस्तान का ऐलान भी हुआ था। अस्सलामु अलैकुम, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। रेडियो पाकिस्तान पिशावर स्टेशन की मौजूदा इमारत 80 की दहाई में बनाई गई थी। 10 मई को शरपसंद रेडियो पाकिस्तान पिशावर की इमारत पर हमलावर हुए और इसके मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगा दी गई। शरपसंदों के इस घिनौने अमल की आवाम पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान हमारा असासा था। सबसे पहले जो पाकिस्तान का जो है ना अनाउंसमेंट हुआ था, ये रेडियो पाकिस्तान से जो है ना यहाँ से नशर हुआ। रेडियो पाकिस्तान के जितनी भी आर्काइव थी, उन्होंने उन शरपसंदों ने जो है ना तबाह व बर्बाद कर दिया। हमें कानून के दायरे में रहकर अपना पुराना तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करना चाहिए और अपने जो कौमी असासे हैं तो उनको नुकसान पहुँचाने से भी गुरेज करना चाहिए। क़याम पाकिस्तान के बाद रेडियो पाकिस्तान ने एक नई इस्लामी मुमलिकत की फ़िक्री, शऊरी, अदबी, सकाफ़ती, तहजीबी और इस्लाम के बुनियादी तालीमात के मुताबिक कौम की रहनुमाई का फ़र्ज़ बखूबी अदा किया। रेडियो पाकिस्तान समेत किसी भी कौमी इदारे को नुकसान पहुँचाने वाला यकीना मुल्क दुश्मन अनासिर ही है। 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। एहतजाज करना हर किसी का हक है, लेकिन अमलाक को नुकसान पहुंचाना जो है वो कहीं भी किसी को भी नहीं देता। तो हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है, हमारी अवाम है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रेडियो पाकिस्तान पिशावर की इमारत की मरम्मत का काम फौरी बुनियादों पर शुरू करने के अहकामात जारी करके अवाम और खुसूसन रेडियो मुलाजमीन के दिल जीत लिए। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पिशावर। लाहौर की इंसदार दहशत गर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमले में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ फौजी अदालत में ट्रायल चलाने के लिए साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुलजिमों को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की जज इबहर गुल ने कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जिसमें 16 मुलजिमों की तहवील देने की इस्तदा की गई। अदालत ने साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुलजिमों की तहवील देने का हुक्म दिया है। कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुलजिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 7, 3 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए। मुलजिमों के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल हो सकता है। प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को 16 मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडर अफसर के हवाले करने की हिदायत की। 16 मुलजिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज किया गया था और 10 मई से मुलजिमान जुडिशल रिमांड पर जेल पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हसन न्यासी, मुराद सईद, अली नवाज अवान, असद कैसर, शिबली फराज, फर्रुख हबीब, जुल्फी बुखारी और आतिफ खान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी खारिज कर दी गई। ATC के जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत की। लाहौर की इंसदार दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में जिन्ना हाउस हमला केस की समाअत हुई। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को अदालत पेश किया और मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए दोनों रहनुमाओं को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनके जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज़ की तौसीह कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज इबहर गुल ने केस की समाअत की। NG करप्शन कोर्ट लाहौर के जज अली रजा ने चौधरी परवेज इलाही के पेश न होने पर उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में बेज़ाब्तगियों के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है। चौधरी परवेज इलाही की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी ज़हूर इलाही रोड पर पहुंची, तहम परवेज इलाही की अदम मौजूदगी के बायस पुलिस एहलकार वापस रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP ऑपरेशंस ने कहा कि खवातीन एहलकारों के साथ परवेज इलाही के घर की तलाशी ली गई, तहम परवेज इलाही की अदम मौजूदगी के बायस पुलिस एहलकार वापस रवाना हो गए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि जिस शख्स में मैं आ जाए नाकामी उसका मुकद्दर बनती है।
चौधरी शुजात हुसैन, PTI की साबिक MN आयशा गुरलाई, KPK से इज्जत खान और कौमी वतन पार्टी के वली मोहम्मद खान की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस जो लोग पकड़े गए हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए। पार्टी में शमूलियत करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को मौका मिला तो बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत करेंगे। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान और इसके अहल खाना ने गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए कमाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का हिसाब देना होगा। तफसील बताएंगी सदफ अफसल। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमरान खान की बहन और बहनोई ने लिया में गैर कानूनी तौर पर जमीन हासिल की। 6 अरब मालियत की जमीन 13 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जिस पर गरीब किसान सरापा एहतजाज हैं। उन्होंने कहा कि हमशीरा भी भाई की डगर पर चल पड़ी हैं। फराह गोगी और बुशरा मानिका के जरिए अपनी बहन उज़मा खान को और अपने बहनोई आहत को ये 5216 कनाल जमीन फर्जी तौर पर खरीदने की इसलिए इजाजत दी क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर थल कनाल का, जिसने यहाँ से गुजरना था, जिससे इस जमीन की कीमत जो है वो आसमान तक जानी थी। सिर्फ यहाँ नहीं रुके, भक्कर के इलाके में सोलर पंप्स अप्रूव करवा के सरकारी खर्चे पे वो यहाँ पे लगाएं कि वो गरीब हारी, गरीब जिम्मेदार छोटे किसान हैं, वो सरापा एहतजाज हैं कि जिनको पुलिस के जरिए बेदखल कर दिया गया। अता तारड़ ने कहा कि इमरान न्याजी आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। करप्शन के बावजूद कहते हैं हमने क्या किया। उन्होंने कहा कि ये मुल्क शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। इमरान खान ने तो शोहदा तक को नहीं बख्शा। आपको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए 14 साल कैद की सजा में, जो आपने डाका डाला है पाकिस्तान की अवाम के हक पर, पाकिस्तान की अवाम के पैसे पर, और फिर शोहदा की आपने बेहुरमती की। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? आपने किस केस में ये बेहुरमती की है? 190 मिलियन पाउंड के केस में, 120 अरब के डाके के केस में, या अपनी बहन के उज़मा खान के 5216 कनाल जो जमीन हड़प कर ली उन्होंने उस केस में? आप क्या जवाब देंगे? आपके पास है जवाब देने को? अता तारड़ का कहना था कि जिसने भी तहरीके इंसाफ को छोड़ा उन्होंने धरती माँ से वफादारी निभाई और इंतशार की सियासत से इनकार किया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपको बताएं, मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तरफ से 4 शख्सियात की तलबी के नोटिस वसूल करा दिए गए हैं। इंक्वायरी कमीशन ने ऑडियो लीक्स में शामिल 4 अफराद को 27 मई को तलब किया है। इन शख्सियात में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी, एडवोकेट तारिक रहीम, सहाफ़ी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक नजरसानी के लिए इलेक्शन कमीशन की दरखास्त की समाअत पीर तक मुलतवी हो गई। 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि 9 मई को गैर मामूली वाक़यात हुए, ताहम ये वाक़यात इंतखाबात के लिए कैसे रुकावट पैदा कर रहे हैं? कब तक इंतखाबात के आगे ले जाकर जमहूरियत की कुर्बानी दी जाएगी? चीफ जस्टिस ने कहा कि तारीख में कई मरतबा जमहूरियत की कुर्बानी दी गई और जब भी ऐसा हुआ कई साल नताइज भुगतना पड़े। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट क़वायद आइनी इख्तियारात कम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मुतअद्दिद मुकदमात में करार दे चुकी है कि नज़रसानी का दायरा कार महदूद नहीं होता। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुल्क भर में सेहत के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। इस्लामाबाद में फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान मेडिकल ट्रीटमेंट में खित्ते में मरकज़ का किरदार अदा कर सकता है। गंबद की तहसील खैरपुर में आपको हुकूमत के हॉस्पिटल में फ्री मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट का इलाज मिलता है। हम गंबद के तहसील खैरपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स करते हैं और 100% मुफ्त करवाते हैं। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस का सुना होगा, और वो कराची का एक हॉस्पिटल अब दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है हार्ट प्रोसीजर्स के लिए। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ मिलके हमने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में मुफ्त इमरजेंसी सर्विसेज
बच्चों के लिए चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ का बंदोबस्त किया है, और वो भी मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आए आप देखें, आप खुद कंपेयर करें। एक तरफ NHS जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि सर्विस है, और दूसरा ये चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का सिंध हुकूमत के साथ फैसिलिटी है। मुकाबला किया जा सकता है, ना सिर्फ स्टैंडर्ड्स में, ना सिर्फ फैसिलिटीज़ में, मगर हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स में स्नात और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों में तमग़े तकसीम किए। सेनेट कायमा कमेटी खारजा अमूर को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्दी पूरे खित्ते और पाकिस्तान का मसला है। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास में भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। तफसील जानेंगे नमूद मुस्लिम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सबके सामने रखा। 2025 और 2026 में पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी करेगा। ख़ारजा अमूर के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइट की सदारत में होने वाले इजलास में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम किसी भी प्लेटफार्म को छोड़ने के हामी नहीं हैं और शंघाई ताउन तंजीम में तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से शिरकत की। बहुत पॉइनियंट, पावरफुल, और उनका बयानिया का एक मुंह तोड़ जवाब ये था कि मैं वहाँ बैठ के मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको समझाऊं, मैं उनको कहूं कि मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं। मैं खुद इस टेबल में से जो भी बैठे हैं, मैं खुद मुतासर हूं इन अ वे दैट नोबडी एल्स हैज़ बीन अफेक्टेड बाय टेररिज्म एंड माय पीपल हैव बीन अफेक्टेड इन अ वे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात बहाली में सबसे बड़ा किरदार चीन का है। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाली का खैर मकदम करते हैं, जबकि बड़ी ताकतें अमन के लिए जो किरदार अदा करना चाहिए था वो अदा नहीं कर रही। हर कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग का हामी है, इंगेजमेंट का हामी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हामी है, और जब भी हमारा ईरान के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो मसले हैं वो हल हो। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो चीन का है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कमेटी के अरकान के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कायमा कमेटी को G20 के मामले पर इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। फिस्ताई भारतीय हुकूमत को मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक दिखाने पर दुनिया के मारूफ दानिश्वरों और अरकान पार्लियामेंट की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। KMS के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन इमरान हुसैन ने वज़ीर आज़म ऋषि सुनक को लिखे गए खत में कहा है कि भारत ने श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास मुनक़िद करके मुतनाज़ा इलाकों के बारे में बैनुल-अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की 75 बरस से मुतनाज़ हैसियत के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी बिरादरी का ये तस्लीम शुदा मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का तयन सलामती काउंसिल की पास करदा करारदाद के तहत एक आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देकर ही किया जा सकता है। मारूफ अमरीकी स्कॉलर नोम चॉम्स्की ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में G20 इजलास का इनेकाद बेज़मीरी का मज़हर है। उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा कि ग्रुप 20 मुल्कों को मकबूजा कश्मीर में इजलास से दूर रहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तकसीम बरसग़ीर के नतीजे में पैदा होने वाला कज़िया कश्मीर बहुत से दीगर मसाइल में से एक था जिसने बाद के सालों में मज़ीद गंभीर शक्ल इख्तियार की। उन्होंने कहा कि भारत ने 2019 में कानूनी मुआहदों को मुकम्मल तौर पर रूगर्दानी करके कश्मीर को फौजी कैंप में तब्दील कर दिया था, जिसकी आबादी को तशद्दुद, गुमशुदगी और बुनियादी हुकूक से महरूमी का सामना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में अफसोस का इजहार किया कि भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल के बारे में आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए मज़मूम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। एबटाबाद हवेलिया में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की क़यादत में रैली का इनेकाद किया गया। रैली में सियासी समाजी अफराद समेत शहरियों ने सब्ज़ हिलाली परचम थामे बड़ी तादाद में शिरकत की। फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हम आज इस प्रोग्राम की मुसाफत से ये पैगाम देते हैं, हम अपनी जानों के नजराने इंशाअल्लाह अपने बच्चों की जानों के नजराने पेश करेंगे। अपने वतन की सलामती पे इंशाअल्लाह आज नई खुदा के फजलो करम से आने और अपने मुआवजों का, कौम के मुआवजों का, पाकिस्तान के मुआवजों का अपनी जान के नजराने देके इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे
और जो मैली आंख इंशाल्लाह उनकी तरफ उठेगी, सारे जोर से बोलो, उस मैली आंख और जुबान को खींच के इंशाल्लाह बाहर निकालो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है।